Tandi sir welcomes you on behalf of BAPS Swaminarayan Vidya Mandir Gondal. Today we will discuss engineering admission in Gujarat state. In last lecture we have discussed admissions in Indian colleges on based on JEE. Today we will discuss second lecture of engineering admission for Gujarat, admission in Gujarat. Okay. So in engineering colleges, admissions are given on two criteria. First one, either you can get admission by boards PCM, physics, chemistry, maths, theory plus GUJCAT. This is one way to get admission. Another way is JEE main paper number 1 all India rank. So through these two, you can get admission in Gujarat colleges. Approx 160 colleges there, 139 in GTU college and some around 20 colleges are deemed universities. So around 160 colleges there, and this admission committee for Gujarat is called ACPC, Admission Committee for Professional Courses. Okay, and you can get admission in Gujarat colleges via ACPC and via institutes as well, in management quota, in NRI quota, in vacant quota. After all the rounds completed by ACPC, you can get admission in vacant seats if there are any by institutes as well. So ACPC is the main committee. Okay, now today we will our main discussion will be based on only GUJCAT, not on JEE, because JEE we have discussed already in last lecture. In Gujarat, again telling you, we have 160 colleges, approx 10 colleges, and half seats means 50% seats or 35% seats are filled on the basis of JEE. Again, only 10 colleges and maximum 50% seats means approx 150 colleges completely give admission on the basis of Gujarat Board, PCM and GUJCAT. 150 colleges and only 10 colleges 50-50 means GUJCAT seats 50% and JEE seats 50% or 35%. तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है. 160 कॉलेजेस में से 10 ही कॉलेज गुजरात में, वो भी आधी JEE से भरते हैं ये लोग, और आधी सीट्स भरते हैं GUJCAT से 10 कॉलेज में, और 150 कॉलेज कैसी है वो GUJCAT से ही भरती है. तो सोच लो भैया, 10 कॉलेज 150 कॉलेज, 10 में भी आधी सीट्स. तो ज़्यादातर एडमिशन कहाँ से हो रहे हैं गुजरात में? GUJCAT से हो रहे हैं. तो ये मेन बात है, GUJCAT से हो रहे हैं. ओके, बिफोर स्टार्टिंग एवरीथिंग I want to clear you some of the keywords. गवर्नमेंट कॉलेजेस, ग्रांट इन एड कॉलेजेस, जिसको ग्रांट गवर्नमेंट दे रही है. हर महीने जो सैलरी बिल रहता है 10 लाख 20 लाख 50 लाख का, जो भी प्रोफेसर और वो सब का, वो गवर्नमेंट देती है. वो गवर्नमेंट कॉलेज ही हुए. एक गवर्नमेंट कॉलेज हो गए, ग्रांट इन एड कॉलेजेस हो गए, फिर आते हैं हमारे सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स जो फीस वाले कॉलेज हो गए. ये ज़्यादा सीट्स है, ये भी हम जानते हैं. हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर इंटरेस्टेड रहते हैं. ओके, वो भी डिस्कशन करेंगे. और एक बड़ा वाला डिस्कशन में क्या है, एक है हमारा TFW. आप जानते हो TFW क्या है? TFW है ट्यूशन फी विवर स्कीम. मीन्स फीस नहीं भरनी है आपको, सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लो और गवर्नमेंट के मजे लो भैया, फीस ही नहीं भरनी है. तो ये तो अच्छी बात हो गई ना. 5% सीट्स इन ऑल सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस. ओके, एंड दी अदर थिंग, सपोज आप TFW का मेरिट नहीं बना पाए, उतने परसेंटेज नहीं ला पाए, तो फिर है MYSY, मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन एंड शिष्यवृत्ति योजना. उसके हिसाब से आपको 2 लाख तक की फ़ीस मिल सकती है. 50,000 हर साल, 4 साल के 2 लाख तक आपको स्कॉलरशिप है. ये हेल्प है, ये सहाय है. तो ये रिटर्न नहीं करना है, लोन नहीं है. ये लोन नहीं है, लोन का बात तो अलग है. तो ये सेल्फ फाइनेंस के ये 2 वरदान है. सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में अगर आप जा रहे हो, तो अगर यहाँ पे जा रहे हैं गवर्नमेंट ग्रांटीनेट, तो तुम फ्री में ही है भैया. और अगर TFW मिल रहा है तो भी फ्री है. और अगर SFI सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हो, तो MYSY है तो 2 लाख फीस कम कर लीजिए, जो भी टोटल हो रहा है 4 साल का उसमें से. तो ये सब कुछ बातें हैं जो ज़रूरी लगी मुझे बताने में. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. चलो, अगेन कह रहा हूँ, GUJCAT
more than 150 colleges are giving admissions completely in Gujarat on the basis of PCM and GUJSET, and only 10 colleges they fill half seats on the basis of G and remaining half on the basis of PCM and GUJSET. So let us start. टॉप 10 कॉलेजेस से ही डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। गुजरात की जो टॉप 10 कॉलेजेस जो बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हम नहीं बोल रहे भैया, ये बोल रहे हैं स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। स्टूडेंट कैसे बोलते हैं आप ये सोच रहे होगे, बताते हैं, सब बताते हैं। चलो भैया, ये डॉट लगाई हुई है ना 1 2 3 ये और 4 और 5, ये 5 जो कॉलेजेस है इसकी आधी सीट्स हो गई JEE सीट्स। निकाल लो भैया, निकालना ही चाहिए। JEE का डिस्कशन ही नहीं करना, JEE में मेरिट नहीं बन रहा हमारा, तो वहाँ पे जा सकते हैं। हाँ भैया जा सकते हैं। धीरू भाई वाली जो कॉलेज है, धीरू भाई अंबानी वाली DAIIT ड्रीम कॉलेज फॉर एवरी गुजरात स्टूडेंट अदर देन IIT and NITs इन गुजरात ओनली। ओके, तो वो जो ड्रीम कॉलेज है वहाँ पे जाना है तो आप गुजसेट से जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। गए हुए हैं हमारे स्टूडेंट, गए हुए हैं, काफ़ी सारे बंदे गए हुए हैं। हमारा जो पांचाणी वो जो मीत था वो गया था JEE के बेस से, और इस साल वो जो बालारा जय है वो गया है गुजसेट वाले मेरिट से। सो दोनों से जाते हैं बंदे DAIIT में, दोनों ही सीट से जाते हैं। तो हम आज गुजसेट से जाने की बात करेंगे कि जो ये रास्ता ईजी रास्ता है वहाँ से कैसे जा सकते हैं, वो चलो सोचना है हम लोगों को। पहले 350 सीट उसकी है, निरमा की 800 से ज़्यादा है, IIT राम अहमदाबाद की सीट्स 180, सीज अहमदाबाद यूनिवर्सिटी की सीट्स, और ये अदानी वाली सीट्स। इसमें से कुछ कॉलेज का 50% कोटा, ये सीज और अदानी 50% दे गिव एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ JEE, एंड फर्स्ट 3 कॉलेजेस 1/3 सीट्स निकाल दो, उसमें से 1/3 सीट्स JEE सीट्स हो गई। तो हुई कितनी, ये जो 5,500 टोटल सीट्स है ना बढ़िया वाली सीट्स, उनमें से 676 अप्रॉक्स 700 पकड़ लो, 5,500 में से 700 सीट वो जो हो गई हमारी JEE सीट्स। निकाल दो भैया उसे, तो 4,700 सीट फिर भी इसमें बचती है, ये सारी कॉलेजेस में बचती है। ठीक है, तो ये डॉट इसीलिए लगाया हूँ कि यहाँ पे 1/3 सीट निकाल दो, सब्ट्रैक्ट कर दो उसमें से, और यहाँ जो डॉट लगाया है उसमें सीट आधी कर दो, 100 के आसपास कैलकुलेट कर लो यहाँ पे। ओके, तो अभी 4,700 के आसपास सीट हमें मिल रही है, जो हमारी कौन सी वाली सीट है, गुजसेट से भरी जाने वाली सीट्स, गुजरात की अच्छी वाली कॉलेज की। ओके, ये जो फीस है ये है 7 लाख, 6 लाख, 7 लाख, ये 4 साल की फीस है। अगर MYSY क्या है, MYSY अगर आपकी इनकम 6 लाख से कम है, आपकी फैमिली इनकम, if it is less than 6 lakhs per annum, then you will get a chance of MYSY, मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन एवं शिष्यवृत्ति योजना। ओके, 2 लाख निकाल लो। अगर आप 6 लाख से कम कमा रहे, आपकी फैमिली इनकम है ये सालाना, और आपके 80 के प्लस PR आए हुए हैं, PR परसेंटाइल रैंक 80 प्लस होना चाहिए, तो होगा ही, इस सब कॉलेज में तो रहेगा ही इतना। और जो नीचे वाली कॉलेजेस है तो उसकी तो पहले से ही फीस डाउन है, तो ये 7 वाली भी 5 की हो गई, और वो 4-5 वाली तो पहले से ही 4-5 लाख वाली है अगर आपका PR कम है। तो मैं बेसिकली ऐसा बोलना चाहता हूँ कि 5 लाख बस हो गया इंजीनियरिंग 4 साल का, बस सोच लो, किसी में भी 2 लाख सब्ट्रैक्ट कर लो। ओके, तो ये सारी वो ये रैंक कैसे बनाया, कंप्यूटर, IT, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर के हिसाब से। जैसे हम इंडिया में भी रैंक दिया था वो कंप्यूटर के कट ऑफ के हिसाब से दिया था कि 1 to 40 जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स नंबर 1, रैंक नंबर 1 गुजरात रैंक 240, वो सारे बंदे जाते हैं यहाँ पे DAIIT में, गांधीनगर वाली जो अंबानी वाली कॉलेज है उसमें। 170 तक का जिसका रैंक बनता है वो उसी कॉलेज में IT ICT वाले, ICT कोर्स है वहाँ पे, IT नहीं ICT है, उस कोर्स में जाते हैं। ओके, अगर 200 के आसपास रैंक है गुजरात वाला तो आपको ये कॉलेज तो नहीं मिल रही है, तो आपको निरमा मिल रही है। ये देखो, ये जो मेरिट के हिसाब से हमने कॉलेजेस सेट की हुई है। पैकेज कुछ अलग बात बताएगा, वो बात की बात है, लेकिन हमने बात की है
क्लोजिंग रैंक के हिसाब से बच्चे जो क्लोज पहले 40 एडमिशन यहाँ पे पैक हो गए, 400 के आसपास ये वाली कॉलेज जहाँ पे कंप्यूटर नहीं है ना, वहाँ पे हमने आईटी देखा हुआ है, वो नहीं है यहाँ पे दूसरी देखी हुई है, ऐसे ये सब अरेंज किया हुआ है। ऐसे के ब्रिलियंट वाले बच्चे कहाँ पे जाना पसंद करते हैं, यहाँ नहीं मिल रही तो यहाँ एडमिशन नहीं मिल पा रहा था, IIT राम में जा रहे हैं, वहाँ नहीं मिल पा रहा है तो सीज अहमदाबाद है। ये MS यूनिवर्सिटी वडोदरा ज़ीरो फीस है। ज़ीरो का मतलब क्या, 1500 जो है 1500 पर ईयर, इन 4 years you have to pay only 6000. So if fees is less than 10,000, in that case I have written 0, 0, 0 and 0. How many such seats we have? We have almost 2,400 seats among these first 5,000 seats. 2,400 seats. Okay. So MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा तो इतनी बढ़िया है, वो जो NIRF है ना, इंडियन गवर्नमेंट की जो रैंकिंग है, उसमें भी इसका नाम है। बहुत ही बढ़िया वाली बड़ौदा वाली, फ्री सीट वाली, ज़ीरो फीस वाली, और ज़्यादा सीट्स भी इतनी बढ़िया है, ज़्यादा सीट्स, काफ़ी सीट्स है। ओके। बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय जो VV नगर वाली कॉलेज है, उसमें 2 तरीके के एडमिशन हो पाते हैं। ग्रांट इन एड मतलब ज़ीरो फीस वाली, ओके। सो BVM कॉलेज, बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय VV नगर की जो कॉलेज है, उसमें 2 तरीके की सीट्स है। ग्रांट इन 8 सीट्स मतलब फ्री वाली, ज़ीरो वाली, और सेल्फ फाइनेंस, ये कम सीट्स है, 5 लाख वाली। टोटल ये फीस है 4 साल की, जिसमें 2 लाख निकाल लेने हैं। अगर आपका 80 के प्लस PR है, वो तो होना ही है, ओके, तभी तो इस कॉलेज में आप जा सकते हो। LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इज़ द ओल्डेस्ट कॉलेज आई थिंक इन गुजरात। हमारे वक्त 20 साल से ज़्यादा हो गया हम लोगों को 12th पास किए हुए, 25 के आसपास होने आया। तब LD कॉलेज ही नंबर 1 कॉलेज कहलाती थी, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज ज़्यादातर नहीं थे उस वक्त। अदानी तो अभी शुरू हुई 2015 में, ऐसी नई कॉलेज है ये, काफ़ी सारी नई है इसमें, ये पुरानी है, और 1000 के प्लस सीट्स वाली है, और ज़ीरो, उसमें कोई फ़ीस 1500 रुपये है सालाना। इतनी तो एक कपड़े की पेयर आ जाती है, पेयर भी नहीं आती, अब तो ब्रांडेड पहनने वाले लोग हैं कुछ तो इसमें से ज़्यादातर, ठीक है। तो ज़ीरो वाली जो सीट्स है, जिसकी फ़ीस ही नहीं भरनी है, ऐसी 1000 के प्लस LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन अहमदाबाद सीट्स है, ज़्यादा सीट्स है, हाईएस्ट सीट्स एमंग ऑल टॉप 10 कॉलेजेस। अदानी जो नई स्टार्ट हुई है, उसमें कम सीट्स है, 7 लाख के आसपास उसका टोटल फीस है। DDU का पुराना नाम आप पहचानते होंगे साहब, DDIT नडियाद के नाम से मशहूर था, वो IT कॉलेज था उस वक्त, DDIT बोलते थे। धर्मसिंह देसाई आई थिंक यूनिवर्सिटी, नाउ इट इज़ डीम्ड यूनिवर्सिटी, दैट्स व्हाई न्यू नेम इज DDU। अगेन 2 types of seats, grant in aid and self finance seats, 250 seats of zero fees and approx 500 seats of 6 lakh total 6 लाख। 2 लाख सभी में से निकाल देने हैं आपको। 5, 6, 7 लाख वाली कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो 2 लाख निकाल लीजिए MYSY के, 5 लाख फीस हो गई। और जो इसके नीचे की कॉलेज है तो वो तो पहले से ही 5 लाख की है, तो 5 लाख में इंजीनियरिंग हो गया भैया। तो लास्ट वाली ये टॉप 10 में है GCET VV नगर, GH पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आई थिंक ये पूरा नाम है इसका। 500 के आसपास उसकी सीट्स है और 5 लाख उसकी फीस, ये सीट्स, ओके। ये सारे कट ऑफ्स हैं। अब ये जो कट ऑफ के हिसाब से हमने सेट की हुई है, कंप्यूटर के कट ऑफ, IT के कट ऑफ, इसके हिसाब से उसको रैंक दिया हमने कि सबसे बढ़िया बच्चे इसमें गए, उससे कम मार्क वाले इसमें, उससे कम मार्क वाले इसमें, इस तरीके से हमने ये रैंक बनाया हुआ है। लेकिन आप एक सरप्राइजिंग थिंग पाओगे, क्या पैकेज के हिसाब से अगर रैंक दिया जाए तो कुछ अलग है। तो वो क्या है, पैकेज ही सबसे बड़ी चीज़ रहती है। कुछ बच्चा जो मिडिल क्लास रहता है, हम भी काफ़ी मिडिल क्लास है, तो काफ़ी सारे बच्चे रहते हैं। हमारी स्कूल की फ़ीस भी बहुत ही कम है, आप जानते हो, कॉमर्स के आसपास, उससे भी कम फीस में हम बढ़िया वाला, हाँ, कल हमारा 99 के PR के ऊपर 15 स्टूडेंट आए, आपने देखा ही होगा। तो बहुत बढ़िया वर्क हम कर रहे हैं, हमारा BAPS स्वामीनारायण स्कूल। तो
यहाँ पे मिडिल क्लास बच्चे ज़्यादा रहते हैं, तो मिडिल क्लास बच्चों के लिए ही ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाया। ये 000 की भी डिस्कशन, फीस की और पैकेज की। फीस भर दी, पढ़ लिया 4 साल, अच्छे पढ़ लिया, तो फिर पैकेज क्या मिलेंगे, कितने बच्चे का प्लेसमेंट हुआ, मतलब नौकरी मिली, और मीडियन CTC क्या था। CTC का फुल फॉर्म है कॉस्ट टू कंपनी। समझ लो भैया, कोई कंपनी आपको जॉब दे रही है, अमेज़ॉन आपको ट्रेनिंग देगी 1 लाख की और 8 लाख आपको हाथ में देगी, तो वो तो 9 लाख की गिनाएगी ना, क्योंकि उसको आपके कॉस्ट टू कंपनी ने तो खर्चा किया, आपकी ट्रेनिंग पे 1 लाख डाला, तो वो कॉस्ट टू कंपनी है। इसमें से थोड़ा कम कर लो तो वो हो जाता है आपका स्टार्टिंग पैकेज है ये वाला। और ये मीडियन है। मीडियन का मतलब क्या हुआ, इससे कम पैकेज वाले भी लड़के हैं, 4 लाख वाले, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख वाले भी बच्चे हैं। और ये टोटली कंप्यूटर वाली कॉलेज हो गई। तो हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो कंप्यूटर वाली होती है ना कॉलेज, जिसमें सिर्फ कंप्यूटर IT चलते हैं, वहाँ पे पैकेज बढ़िया रहता है। और जहाँ पे ये ज़्यादा सीट्स हैं वहाँ पैकेज आपको कम देखने मिलेगा, फिर भी बढ़िया है। IIT रैम का 4.5 लाख, वहाँ पे कंप्यूटर नहीं है, IT नहीं है, और उसके बावजूद इतना अच्छा पैकेज जो ये लोग निकाल के देते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आधे बच्चे प्लेस हो गए, बाकी के आधे क्या करते हैं, वो प्लेसमेंट में का तो या तो पार्ट नहीं लेते, या तो फिर मास्टर्स पढ़ने चले जाते हैं, या MBA करने चले जाते हैं, या फैमिली बिजनेस संभालते हैं। सारे बच्चे प्लेसमेंट नहीं लेते, समझ लो। ये है लाख पर एनम सालाना CTC। ये जो है निरमा से भी बढ़िया वाले पैकेजेस कुछ कॉलेज में है, काफ़ी कॉलेज में है, लेकिन निरमा का नाम उतना हो चुका है। निरमा एकदम हाई प्रोफाइल कल्चर वाले, अहमदाबाद के जो बढ़िया वाले पैसा वाले बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। वो स्कोर भी होता है, स्कोर भी काफ़ी अच्छा चाहिए, तभी वहाँ पे एडमिशन हो पाता है। लेकिन उसका मेरा इंप्रेशन, मेरे जो बच्चे जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो जो मुझे बता रहे हैं, उसके हिसाब से मैं जो बता रहा हूँ आपको, निरमा का इंप्रेशन काफ़ी अच्छी कॉलेज है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। 500 से ज़्यादा बच्चे को नौकरी दिलाना बढ़िया बात ही हो गई, और उसमें 3.5 लाख का CTC है मीडियन, बीच वाले बच्चों का। इससे कम पैकेज वाले भी है, ज़्यादा पैकेज वाले। कंप्यूटर है तो पैकेज डबल कर लो, क्योंकि कंप्यूटर में ही पैकेज ज़्यादा रहता है, और अच्छे से पढ़ रहे हो तो पैकेज और बढ़ा लो, 7-8 लाख। अगर आप कंप्यूटर में आधे बच्चे आपसे वीक है और आधे आपसे रैंकर है, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो उस क्लास में, तो डबल कर लो इस पैकेज को, 7 लाख तो आपको मिलना ही है। तो अब ये आपको इसके आसपास दिखने लगेगा, और इसमें कंप्यूटर नहीं है देखो। तो ये वाली ब्रांच है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल वाली जो ब्रांचेस है सारी, उसी के ये पैकेज। तो उसके पैकेज में तो डबल बबल कुछ नहीं करना, जो दिख रहा है वही मिल रहा है भैया। तो शायद इसलिए निरमा आगे रह रही है। ये मीडियन CTC कम दिखा रहा है, ये ज़्यादा दिखा रहा है, फिर भी पहले ये पैक हो रही है। देखो 1500 वाला जो मेरिट नंबर वाला बच्चा यहाँ गया, 6000 के आसपास नंबर वाला यहाँ पे गया, ये बड़ा डिजिट है। फिर भी सिर्फ ये नहीं देखना है, देखना ये भी है कि कंप्यूटर है, डबल पैकेज, या फिर अदर ब्रांचेस है, तो फिर आप देख लो, तो फिर आपको देखना है। सीज अहमदाबाद यूनिवर्सिटी की कॉलेज है। कुछ कॉलेज के नाम भी नहीं सुने हमारे बच्चों ने, ये कुछ नई वाली कॉलेज है। IIT राम हमारे माननीय मोदी जी ने स्टार्ट की, उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है उसमें, वो भी नई कॉलेज है। सीज को भी काफ़ी साल नहीं हुए, अभी नई कॉलेज है ये, लेकिन बढ़िया काम करने वाली कॉलेज रहती है ना ये सब वो वाली। 86% बच्चे को प्लेस करना कोई छोटी बात नहीं होती, और वो भी अच्छे वाले पैकेज में। 4.5 लाख से ऊपर का पैकेज कौन नहीं चाहेगा। तो अगेन बता रहा हूँ आपको कि इसमें अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो मीडियन से आप ऊपर ही रहोगे। MSU का हमने डिस्कशन आगे भी किया कि MSU की भैया फ़ीस क्या है। तो MSU की फ़ीस है 0, फिर भी 3 लाख के ऊपर पैकेज दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हो। तो ये तो वरदान वाली कॉलेज हो गई। जो पुअर बच्चे हैं, बहुत पुअर बच्चे हैं, उसके लिए वरदान कॉलेज है। ये BVM है। BVM की जो 400 से ऊपर सीट जो 0 वाली है, वो 4.25 लाख का पैकेज दे रही है आपको। ये मीडियन पैकेज है, अगेन टेलिंग यू, मीडियन पैकेज। उससे ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है। अच्छे से पढ़ोगे ज़्यादा रहेगा, कंप्यूटर पढ़ोगे डबल रहेगा किसी भी कॉलेज में। LD कॉलेज में जा रहे हो, 0 फीस में 3.5 लाख का पैकेज दे रहे हैं भैया। फीस नहीं भरनी है कुछ भी, बस पैकेज ले लो आप लास्ट में। तो ये जो गरीब बच्चे हैं उसके लिए वरदान है भैया, ये सोच लो, समझ लो आप।
अदानी का तो अभी 2019 का प्लेसमेंट अभी वेबसाइट्स में कुछ नहीं ऑफिशियल दिखा रहा है, तो अभी डिस्कशन में नहीं ले रही है हम इसको। अभी पहला ही बैच 2019 में पास हुआ है उसका। DDU ज़ीरो वाली फीस 0 और 6 लाख, 2 टाइप की सीट्स आप जानते हो। और ज़ीरो वाले बच्चे भी इतना इतना पैकेट लेके जा रहे हैं। देखो ये दोनों बच्चे साथ में ही पढ़ते हैं, ये दोनों बच्चे फ्री वाले 5 लाख वाले दोनों एक साथ ही पढ़ते हैं। फ्री में एडमिशन चाहिए तो बढ़िया रैंक ले लो, नहीं तो थोड़ा रैंक कम आया है, थोड़ा ठीक रैंक आया है तो आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी। 2 लाख तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर ही सकते हो आप, वो MYSY वाले, ठीक है। तो ये DDU में अगर ये दोनों सीट्स है, 0 फीस वाली 6 लाख वाली, वो भी पैकेज दे रहे हैं 3 लाख से ऊपर, 3.5 लाख से ऊपर एक्चुअली। और GCET VV नगर वाली 5 लाख वाली जो कॉलेज है उसका पैकेज 3 लाख के नीचे है, सालाना 3 लाख से नीचे, मतलब 20,000 के आसपास, 25,000 के आसपास बंदा पैकेज लेके जाता है, 22,000 के आसपास महीने का। ये मीडियन बीच वाला पैकेज है। इससे ऊपर भी पैकेज रहेंगे। देखो यहाँ पे आपका 10,000वां रैंक है, 12,000वां रैंक है, तो बच्चे अभी इतने ब्रिलियंट नहीं है भैया। 40,000 बच्चे हैं, 35,000 बच्चे हैं पास हुए, उसमें से 30,000 बच्चे हैं ए ग्रुप वाले, उसमें 12-13,000 वाला रैंक वाला बच्चा उतना ब्रिलियंट नहीं है भैया, फिर भी इसको पैकेज मिल रहा है। ब्रिलियंट उतना नहीं है, देख लो यहाँ पे भैया आप 2,000-3,000 के आसपास, 10,000 के आसपास, ये 3,000 के आसपास कंप्यूटर IT उसका पैक हुआ है। 3,000 का बच्चा है, वो भी ये पैकेट लेके जा रहा है। तो अच्छी कॉलेजेस इसी को बोलते हैं ना भाई, कि यहाँ तो फीस कुछ है नहीं, फीस है भी तो भी MYSY सब बेनिफिट ले लो और ये बढ़िया बढ़िया पैकेट ले लो भैया। दीज आर द टॉप 10 कॉलेजेस ऑफ गुजरात, ऐसे से। और अगर आपको टॉप 10 में नहीं मिल पा रहा है तो क्या करना है, चलो वो भी डिस्कस करते हैं। ओके देन, DDU, old name DDIT, Nadiyat, grant-in aid quota and self-finance quota. As we know, in grant-in aid quota, fees 0, and in government self-finance quota 6 lakh, and this many 700 plus students there, and out of them 300 were placed with median CTC, median package of 3.6, 3,60,000, means 30,000 per month salary. And look, merit numbers, first 1,000 merit number, if you score in first 1,000 merit number, in that case you are in computer, in that case this package will be almost double, 6 to 7 lakhs. And if you have this kind of merit numbers, 2,000, 8,000, 6,000 round, and you choose for opt for these branches, in that case your package will be down and your placements will be not 100% as well. Branch is very much important here. Okay, and sorry, it is not government, it is GH Patel College of Engineering and Technology College, and in that college 500 plus seats there right now, and this 2018 placed students were 300 plus with median package this 2.70. Sometimes you wonder that this package is very low yearly package, but you may see here merit number is also lower, because almost 35 to 40,000 students are eligible to get admission in engineering, and out of those 35,000 students, look here merit number almost 13,000, 10, 11,000, 3,000 around, 2,000 around. So this merit number shows that these students are not that much brilliant. Suppose 70 score in all 3 subjects, then that student is not considered that much brilliant, and still median package is 2.70. Again telling you, if you are in computer or IT, then double this package, 4 to 5 lakhs easily. If you score only 80 around something score, and then also you get direct job at the age of 21 with double salary in computer almost in each and every college, almost 4 to 5 lakh salary, starting salary in age of 21 with this kind of merit number. So it's not a bad deal, it's a good deal, buddy. So these are top 10 colleges of Gujarat closing merit number wise.
package wise little bit different order will be there. Okay, so these are the colleges. And now suppose now we will discuss if you haven't scored these many marks, only 60 kind your score is there, then we will discuss that. Before that, for some ranker and poor students, 3-4 things. First one, for poor student, consider this. This is government college, government. These are good government colleges, very good, excellent. MS University, BVM, LD and DDU grant in aid. These 4 options you have with 0 fees. Now don't go for 0 fees always. These are good colleges, then it's okay. But otherwise what happen in many cities, you will see GEC, government engineering colleges, and all of them are not that much good. So you have to choose wisely while you are opting for government college. It is better you go in self-finance in TFW. As I told you, TFW means tuition fee waiver scheme. Free seats in self-finance. If affordable fee is affordable to you, then no issue. Maximum 7 lakhs fee is there, so no issue in 4 years. Otherwise, if it is non-affordable, in that case, go for tuition fee waiver scheme in good self-finance. Or otherwise, if your PR is 80 plus, then MYSY will help you with the help of 2 lakh rupees. It's not loan, it's scholarship, it's help. So टोटल फीस में से आपको 2 लाख निकाल ही लेने हैं, MYSY ख़त्म। अगर आपका PR 80 से ज़्यादा है और अगर आपका फैमिली इनकम 6 लाख से कम है, और अगर ये भी नहीं हो पा रहा है, थोड़े जो 3-4 लाख अभी भरने बाकी रह गए, तो उसका एजुकेशन लोन भी हो सकता है। अगर वहाँ पे भी नहीं जाना चाहते तो फिर गवर्नमेंट कॉलेज ले लीजिए। गवर्नमेंट कॉलेज अभी हम देखेंगे कि कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ही डाउन मेरिट में भी एडमिशन मिल जाते हैं, डाउन टाइप के मेरिट में भी। और गवर्नमेंट कॉलेज अगर हमारे सिटी में नहीं है, लेकिन हमारे लोकल सिटी में सेल्फ फाइनेंस अच्छा वाला कोई कॉलेज है जिसमें मिल रहा है, तो सेल्फ फाइनेंस में फ़ीस भरिए। क्योंकि गवर्नमेंट में अगर आउट ऑफ योर होम टाउन रहेंगे तो खाने पीने का और हॉस्टल का खर्च आएगा, और लोकल अच्छी सेल्फ फाइनेंस में जाएंगे तो खाने पीने का खर्च बच गया, तो वो खर्च आप सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस के रूप में। लेकिन वो सेल्फ फाइनेंस है तो प्लेसमेंट है, बस ख़त्म। सेल्फ फाइनेंस वाले जी जान लगा देते हैं, बच्चों को पढ़ाने से लेकर उनको जॉब दिलाने तक, सब तक वो पूरा ख्याल रखते हैं बच्चों का। गवर्नमेंट भी अच्छे रहते हैं कुछ कॉलेज, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कुछ भी, लेकिन सेल्फ फाइनेंस का डू और डाई सिचुएशन रहता है। अगर वो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, मर जाएंगे, वो भी तो करेंगे ही। तो अच्छा, सेल्फ फाइनेंस इज़ बेटर डिसीजन कंपेयर टू bad government college. Some bad government college, some are good that we have seen. Look, now suppose your merit is not that much, merit is just okay. In that case, what will happen? And your dream branch is still computer and you want to go in computer only. In that case, look here, these are some colleges, computer, actually in 150 colleges computer course is there in Gujarat. DDU, DDIT पुराना नाम था, वही नडियाद वाला कॉलेज, वो 240 के मेरिट में ख़त्म हो गया उसका एडमिशन। जो 240 नंबर का बच्चा था ना गुजरात में, बस वहाँ तक के एडमिशन हो पाए उसमें। ओके, फिर था महाराजा सयाजीराव MSU, LD हो गया, BVM ग्रांटीनेड। देखो BVM यहाँ भी मिलेगा, नीचे भी मिलेगा। BVM जो ग्रांटीनेड है तो यहाँ पे नीचे सेल्फ फाइनेंस कहीं पे लिस्ट में आपको मिल जाएगा। नहीं, BVM में वो सेल्फ फाइनेंस में कंप्यूटर नहीं है, सॉरी, इसमें है। DDU में दोनों है, DDU में सेल्फ में भी है कंप्यूटर और गवर्नमेंट में भी है, गवर्नमेंट में और सेल्फ में। सेल्फ का भी देखो 300-400 के आसपास मेरिट नंबर है तभी हो पाएगा। निरमा है 800-900 के आसपास है तो सेल्फ फाइनेंस वाला नडियाद है। वो देखो बच्चे यहाँ पे गवर्नमेंट में जा सकते थे, गवर्नमेंट चांदखेड़ा, गांधीनगर, भावनगर, राजकोट, मोडासा, पाटण, दाहोद में तो देखो 13,000-15,000 प्लस मेरिट नंबर है, फिर भी कंप्यूटर जैसी बढ़िया वाली ब्रांच मिल रही है। लेकिन बच्चे वो नहीं ऑप्ट कर रहे हैं। ये जो 1000 के आसपास नंबर वाले बच्चे हैं उसको आसानी से इसमें मिलने वाला है, लेकिन बच्चे वहाँ नहीं जा रहे हैं। बच्चे ये वाली कॉलेजेस पसंद कर रहे हैं जहाँ पे प्लेसमेंट बढ़िया है, पढ़ाई बढ़िया है। तो ये बात रहती है। ओनली
गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं सोचना है। ये वाली गवर्नमेंट है सारी, और लाइन के इस तरफ वाली सारी सेल्फ फाइनेंस है, जिसमें राजकोट की वीवीपी और ये सब भी कॉलेजेस है बढ़िया वाली, कई सारी कॉलेजेस आप देख सकते हो। वो GH पटेल जो हमने बोली थी वो है, PDPU, DDU, निरमा है। ये सारी कॉलेज का ये क्लोजिंग मेरिट नंबर है, 5,000, 4,000, 6,000, 7,000, 12, 15,000, 16,000 तक का आपका मेरिट नंबर है तो ये वाली कॉलेज आपको मिल सकती है, या फिर इसके नीचे की मिल सकती है। नीचे की मतलब अभी है भैया, और कॉलेजेस में कंप्यूटर चलता है। ये देखो 17,000 मेरिट नंबर है, कंप्यूटर मिल जाएगा, आप ओपन वाले हो तो। ये सब सेल्फ फाइनेंसिस है। 20,000, 22,000, 27, 30,000 में भी आपको कंप्यूटर मिल जाएगा। कंप्यूटर की ब्रांच कोई ना कोई कॉलेज में मिल जाएगी। 32, 35, 38,000, 38,000 स्टूडेंट्स, बस ख़त्म, मेरिट ख़त्म हो गया भैया। 40,000 तो बंदे मेरिट लिस्ट में भी नहीं थे उस साल। सबको कंप्यूटर कहीं ना कहीं मिलता है, ड्रीम ब्रांच कंप्यूटर है तो। और इससे आगे की बात देखिए भैया, ये पारुल है वाघोड़िया वाला, PIET, उसका तो वैकेंट खाली रह गया कंप्यूटर। देखो 225 सीट्स थी, 180 फिल हुई, बाकी की खाली रह गई, 45 सीट्स खाली रह गई, तो ये वैकेंट हो गई। ये सारी वैकेंट इस सारी कॉलेजेस में, ये मारवाड़ी है, RK है, जो हमारी राजकोट की, इसलिए मैं राजकोट का होने के हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। ये सब सारी कॉलेज मुझे पहचान में है, इसलिए देखी हुई है मैंने। तो ये सारी कॉलेज में तो एडमिशन मिल रहा है। अगर आप मेरिट लिस्ट में हो तो आपको एडमिशन मिल रहा है कंप्यूटर में और कोई भी ब्रांच में। ये लास्ट वाला TFW है, ये भी जो मिडिल क्लास बच्चे हैं उसको देखना चाहिए। TFW में किस किस मेरिट से एडमिशन हो रहा है। फ्री वाली कॉलेज फीस वाली है, लेकिन आपकी सीट फ्री वाली है, तो उसमें भी एडमिशन मिल जाता है भैया। ओके, तो ये सारी कॉलेज है, ये सारी कॉलेज तो खाली रह गई कंप्यूटर में। ये देखिए कंप्यूटर में ये पूरा पेज भर के दिया हुआ है, सारी कॉलेज वैकेंट 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 वैकेंट। कुछ कॉलेज में तो देखिए भैया 90 सीट्स में से एक भरी है भाई, 45 में से एक। ऐसे में तो कम ही बच्चे जाना पसंद करेंगे। TFW भी खाली है, देखिए इसका TFW भी खाली रह गया। फीस वाली कॉलेज में फ्री वाली सीट, उसमें भी कोई नहीं जाना चाहता था। ऐसी भी सीट्स रहती है। ये कंप्यूटर अभी भी चल रहा है, देखो यहाँ पे जाके ख़त्म हुआ कंप्यूटर। जस्ट ये वैकेंट वाली कंप्यूटर सबसे डिमांडिंग ब्रांच बोलते हैं, इसलिए कंप्यूटर का पहले मैंने डिस्कशन किया। कंप्यूटर में मिल रहा है भैया आपको, तो सिविल में, इलेक्ट्रिकल में तो मिलेगा ही मिलेगा। कंप्यूटर का मेरिट सबसे हाई रहता है। चलो, this page is written in Gujarati, but we will see only digits here. Okay, so government जॉब अगर आपको करना है तो गवर्नमेंट जॉब में GPSC, या बहुत ट्रेंड में है भैया, GPSC करना है, UPSC क्रैक करना है। सब बच्चे बोलते हैं, हाँ, कोई अंकल टाइप लोग बोलते हैं, जिसने जो 2-4 नाम सुने हुए रहते हैं वो लोग बोलते रहते हैं GPSC करो बच्चा, UPSC करो। UPSC करे, 9 लाख से ज़्यादा बंदे लड़ रहे हैं 1300 सीट के लिए। क्या बात कर रहे हो? 700 बंदों में एक का सिलेक्शन होना है, तो ये कोई कैरियर हुई मेरे भाई? ये तो लॉटरी का टिकट हो गया। अगर लॉटरी की टिकट भी 100 में से एक को निकलती है, ये तो 700 में से एक, तो ये क्या चांस है कोई? तो ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है। ये तो वो CA वाला मामला हो गया। CA से भी गड़बड़ मामला है। CA का मैंने आपको मैथ समझाया था कि हर 100 में से एक ही कॉमर्स वाला CA तक की सफ़र तय कर पाता है। तो ये तो इससे भी ख़राब डिजिट हो गया ये तो CA से भी ख़राब सक्सेस रेट है इसका। तो सक्सेस रेट तो देखिए भैया। और ये क्या, यहाँ पे 9:1, ये क्या है? GPSC में सब ग्रेजुएट बैठ सकते हैं, ऐसी भी सीट्स है। मैकेनिकल वाली स्पेशल 500 पोस्ट थी, इलेक्ट्रिकल वाली स्पेशल 600 पोस्ट थी, सिविल वाली देखो सबसे ज़्यादा, जिसमें सिर्फ सिविल का बंदा ही बैठ सकता है। 20,000 बच्चे बैठे थे, 2,000 के आसपास सीट थी, 9:1। फॉर एवरी 9 कैंडिडेट you have 1 selection. So this is called some good success rate compared to this. In GPSC, this is ratio. Out of 3 lakh student, only 1,000 something posts there. So 230 बच्चे, हर 230 में से एक, दूसरा 230 का बल्लोट उठा, उसमें से एक, ये सक्सेस रेट है। बहुत ही सक्सेस रेट ये लो वाला है, बहुत ही लो वाला है। लेकिन अगर आप इंजीनियर हो तो आप इसमें भी ट्राई कर सकते हो, इसके में भी ट्राई कर सकते हो। आपके पास डबल अपॉर्चुनिटी है, डबल अपॉर्चुनिटी। तो मैकेनिकल वाले हो तो ये रेशियो है आपका GPSC का, ये रियल डेटा है,
वेबसाइट्स में से निकाला हुआ। अरे बहुत बड़ी रिसर्च टीम है भैया ये सब वर्क करने वाली, कितना बहुत रिसर्च करके आपको सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल है तो 33:1 का रेशियो है, सिविल का सबसे अच्छा रेशियो है। अगर आप गवर्नमेंट ही सोच रहे हैं तो सिविल बेस्ट है, ये भी ठीक है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल भी। जीपीएससी यूपीएससी तो भैया अच्छी ही है मेरे भाई, और पीएसयू स्पेशल इंजीनियर्स गवर्नमेंट जॉब्स है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स ही अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें 2 लाख एप्लीकेशन में 12,000 सिलेक्शन थी, पोस्ट थी, तो 16 हर 16 बच्चे में से एक, हर 16 इंजीनियर में से एक ये पीएसयू क्रैक करके गवर्नमेंट में इंजीनियर बन सकता है। तो गवर्नमेंट में अगर आप सोच रहे हो तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और सिविल ही सोचो। अगर प्राइवेट में जॉब करनी है, अमेजोन में जॉब करना है, फ्लिपकार्ट में, गूगल कैलिफोर्निया का वीडियो देखना भैया यूट्यूब में, गूगल कैलिफोर्निया याद रखना, वीडियो देखना भूलना मत, फिर देखना सोचना मन हो जाएगा कि जॉब तो वहीं करनी है मेरा भाई। अगर प्राइवेट में जॉब करना है, ऐसा कुछ बड़ी वाली कंपनी में जॉब करना है तो वो सही है, तो कंप्यूटर अच्छा है। अगर गवर्नमेंट में जाना है तो ये सारी ब्रांचेज अच्छी हैं, ठीक है। कौन सी ब्रांच लेनी है तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है पूरा का पूरा, ये आपको ही डिसाइड करना है। ये देखो कंप्यूटर का जॉब ऑफिस वाला ही रहता है, और सिविल का ज़्यादातर फील्ड वाला, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल भी फील्ड में ज़्यादा है, 70 से 80% फील्ड है। फिज़िकल वर्क इन सब में ज़्यादा रहता है, इसमें लॉजिकल वर्क है, ऑफिस में बैठना है, ज़्यादातर तो एसी ऑफिस ही रहती है। गवर्नमेंट जॉब सबसे हाई चांस सिविल का है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मीडियम है, और कंप्यूटर का बिल्कुल लोअर है। अगर आप एसटी एससी के कैंडिडेट है ना, तो आप अगर गवर्नमेंट का चांस आपका बढ़िया हो जाता है तो फिर सिविल, या फिर इसमें कुछ सिविल सबसे बढ़िया रहती है, या फिर इसमें भी इलेक्ट्रिक मैकेनिकल में भी आप जा सकते हो। पूछ के जाना भैया, किसी कोई मेरा नाम मत लेना कि आपने बताया था इसलिए किया, नहीं, एक को मत पूछिए। आपसे ज़्यादा अगर लग रहा है कि ये ज़्यादा सेंस वाला है, ये फील्ड का आदमी है, ये बहुत ही पहुंचा हुआ है, एक्सपीरियंस पर्सन है, खूब कमाया है फील्ड में, तो मतलब होशियार है, तो ऐसे 3-4 बंदों को रिक्वेस्ट कर करके उसकी एडवाइस लीजिए। एडवाइस किसकी लेनी चाहिए समझना, ओके। प्राइवेट सेक्टर जॉब्स सिविल में तो बहुत ही कम है मेरे भाई, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में ठीक है, और कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा। प्राइवेट में जाना है कंप्यूटर, गवर्नमेंट में जाना है सिविल। कैंपस में जॉब सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में होता है, ग्रोथ भी सबसे ज़्यादा वहाँ पे है। कम इनकम, अगर आप एक लैपटॉप से भी आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। देखे हुए कई सक्सेस स्टोरीज आपको पढ़ने मिल जाएंगी यूट्यूब में और काफ़ी सारी जगह में, कि वेरी स्मॉल एक लैपटॉप से, एक रूम से शुरू करने वाला बंदा बहुत ही लो कैपिटल से आप स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे। जॉब तो लोकल से लेकर ग्लोबल तक। हमारा बच्चा एक कैलिफोर्निया में, मैंने बात की थी ना, करणी धनंजय, हमारा BAPS APSH का ही स्टूडेंट था, और वह कैलिफोर्निया गूगल तक गया है। उसका पैकेज तो भैया सोच भी नहीं सकते, हम सारे स्टाफ वाले क्या पैकेज जोड़ लो, मिला लो, सबका टोटल लगा लो, हमसे छोटा है वो एज में और इतना कमा रहा है, हम सबका टोटल पूरे स्टाफ का, वो अकेला बंदा। तो ग्लोबल तक, वर्ल्ड तक, कैलिफोर्निया मतलब ख़त्म भैया, उससे बड़ी ऑफिस नहीं है वर्ल्ड में कहीं पे। गूगल कैलिफोर्निया लास्ट थिंग एनीबडी कैन ड्रीम अबाउट टू डू अ जॉब, ओके, वहाँ तक के चांस रहते हैं। और कई बंदे कहेंगे कि लोकल क्या चांस है कंप्यूटर का, लोकल तो कोई चांस ही नहीं रहता, ऐसे भी बोलने वाले बंदे मिल जाएंगे। अच्छा ऐसी बात है, तो सुनिए, लोकल मतलब राजकोट तो ठीक ही है, बोल रहे हैं कि राजकोट में तो भैया क्या कोई राजकोट में ही रहना है लाइफ टाइम, तो यहाँ पे तो कोई IT कंपनीज़ नहीं है। कौन बोलता है नहीं है, देखो ये राजकोट की 300+ IT कंपनीज़, राजकोट बोल रहे हैं कि हैदराबाद बेंगलोर बड़े हब हैं, इससे तो काफ़ी बड़े हैं, लेकिन राजकोट भी छोटा नहीं कहला सकते। अगर 300 से ज़्यादा IT कंपनियाँ यहाँ पे काम कर रही है, सर्वाइव कर रही है, कई बंदे इसमें जॉब कर रहे हैं, तो वही बता रहा है कि भैया अब राजकोट भी छोटा नहीं रहा। पहले ऐसा 10-20 साल पहले हमको भी बोलते थे कि भाई कंप्यूटर करेगा तो बाहर ही जाना पड़ेगा, राजकोट में तो कोई जॉब स्कोप है नहीं। कौन बोल रहा है, देखो गर्ल्स स्टूडेंट्स के पेरेंट्स तो ज़्यादा सोचेंगे कि भैया दूर नहीं भेजनी लड़की को, तो राजकोट में ही है भैया ये कंपनीज़, इतनी कंपनीज़। हाँ ठीक है, पैकेज उतने शायद नहीं रहेंगे, ग्रोथ भी उतना शायद नहीं रहेगा, लेकिन है जॉब, अच्छी जॉब है, लोकल है। या तो लोकल ले लो, या फिर अगर आपका ड्रीम हाई है तो फिर
बड़ी छलांग लगानी है तो अलग बात है। ओके, ब्रांच के बारे में तो काफ़ी सारी बातें हो भी सकती है अभी, लेकिन अभी तो नहीं करेंगे वो। Many students ask that where they have to study, they should study 11th, 12th, whether Ahmedabad, Surat, Rajkot, many of them, many of you as well. काफ़ी सारे बच्चे सोचते हैं किस बड़े बड़े सिटी में बड़ा रिजल्ट, ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन अब आपको एक सस्पेंस वाली बात बताने वाला हूँ। ये टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट गुजरात के, गुजरात बोर्ड का रिज़ल्ट जो है उसमें 18 और 19 दोनों में पहले नंबर पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहेगा? क्या सोच रहे हो आप? क्या वो अहमदाबाद है, सूरत है, बड़ौदा है, या फिर आनंद नवसारी, ऐसा कुछ अलग है? कुछ सुरेंद्रनगर, भावनगर, जामनगर, ऐसा कुछ? देख लो भैया, पहला डिस्ट्रिक्ट राजकोट। राजकोट, यस इट इज़ राजकोट। एंड दिस ईयर एज वेल इन 2020 रिजल्ट डिक्लेयर yesterday, result declare on Sunday. In that result you can see first district is Rajkot with 85% result in 12th science. Not only that, double A grade, A1 grade, that is A1 grade, highest A1 grade students in Rajkot, higher than Ahmedabad. And if you compare strength wise, number of student wise, then you will see A2 grade ratio is higher ratio here I am telling. अगर 10,000 बच्चों में से 100 आए और 5,000 बच्चों में से 90 आए A2 वाले, तो कौन सा बढ़िया है? 5,000 में 90 वाला 10,000 में कितना आएगा? 180, ऑलमोस्ट डबल। तो ये रेशियो निकालो, टोटल स्ट्रेंथ और A2 ग्रेड, A1 ग्रेड रेशियो निकालो, देखोगे आप सब में राजकोट आगे, पासिंग में, ग्रेड में, सब में राजकोट आगे है। और ये आजकल का डेटा नहीं। दूसरा कौन है? दूसरे नंबर पे है बोटाद, बोटाद डिस्ट्रिक्ट। ये थोड़ा छोटे वाले डिस्ट्रिक्ट रहते हैं, अच्छा काम करते हैं तो आता है रिजल्ट। मोरबी, सारे सौराष्ट्र, नो सूरत, नो अहमदाबाद, नो बड़ौदा येट। विद्यानगर, आनंद, वो सब कहलाते थे एक ज़माने में भाई गांगुली भी अच्छा प्लेयर था। अब कोई लेगा उसे टीम में? अब चेयरमैन है BCCI का, ही इज़ माई ड्रीम कैप्टन एट वन टाइम, वेरी गुड कैप्टन, बट राइट नाउ हिस्ट्री इज़ अ हिस्ट्री। अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, विविनगर अच्छे अंकल लोग बोलेंगे कहलाते हैं, थे नहीं, कहलाते थे, ये देखो। और चौथे नंबर पे यहाँ पे अहमदाबाद रूरल आ गया, यहाँ पे द्वारका डिस्ट्रिक्ट आ गया। देख लीजिए आप, टॉप 10 में 6 डिस्ट्रिक्ट सौराष्ट्र, टॉप 3 सौराष्ट्र। यहाँ पे देख लीजिए, टॉप 4 सौराष्ट्र, 6 आउट ऑफ 10 सौराष्ट्र। नॉट ओनली दैट, 2020 का बुकलेट अभी कल का ही नेट पे आपको मिल जाएगा, गुजरात बोर्ड की वेबसाइट में रिजल्ट बुकलेट मिल जाएगा, देख लेना। A1 ग्रेड, A2 ग्रेड सब में राजकोट आगे, रिजल्ट सब में राजकोट आगे। और ये देखिए 17 में राजकोट पीछे था थोड़ा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ सौराष्ट्र इन टॉप 10 ऑफ गुजरात। लुक, मैंने ये क्यों छिपा के रखा था? आप सोच रहे हैं छिपाया क्यों था राजकोट पीछे? इसलिए नहीं, वो रीज़न नहीं है। रीज़न यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 80 है, ऐसा क्यों? यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम था, 4 सेम में से टोटल मिला के आपको पास होना है। 4 बार मैथ्स देनी है, 100 400 में से आपको 132 ही लाना है। अगर 2 बार में ही 132 हो गया तो बाकी के 2 बार में परफॉर्मेंस 0 आएगा तो भी आप पास है। तो उसमें पास होना काफ़ी इजी था उस सिस्टम में। तो वो सिस्टम थोड़ी MCQ वाली थी, कुछ जगह पे चोरी भी ज़्यादा हो रही थी, इसलिए उसका डिस्कशन तो ऑथेंटिक मैं नहीं समझता, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ। तो जब से ये सिस्टम आया है, 18 नंबर 1 राजकोट, 19 नंबर 1 राजकोट, 20 नंबर 1 राजकोट अगेन, सो राजकोट इज़ नंबर 1 एंड इन राजकोट highest result center is Gondal, and in Gondal 100% result continue 5 years we had given, 13 to 17 I think, 13, 14, 15, 16, 17 I think you may see on our website, BAPS official website, continue 5 years we gave 100% result, yes, कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ था,
कल के रिजल्ट में भी हमने देखा 15 बच्चे 99 पीआर से ऊपर। हमारी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं रहती, हज़ार वाली स्ट्रेंथ वाली भी स्कूलें है कुछ कुछ, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है हमारी। गोंडल जैसे छोटे टाउन प्लस में हम बहुत ही बढ़िया काम भगवान की दया से कर रहे हैं। अब कुछ बच्चों ने मुझे बताया, पूछा कि भैया आप तो सिर्फ ए ग्रुप के बारे में ही बोल रहे हो, कुछ बी ग्रुप का बताओ। तो बी ग्रुप के बारे में बस 5 ही मिनट बोलूँगा, 5 ही मिनट, क्योंकि ज़्यादा मेरे पास उसका नॉलेज नहीं है, तो मैं बी ग्रुप के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन मैं सीट और फीस का कुछ बोल देता हूँ, बस इतना ही सिर्फ। गवर्नमेंट कॉलेज MBBS की 5,500 सीट्स, जैसे हमारी टॉप 10 इंजीनियरिंग जो गुजरात की है उसमें भी 5,500, यहाँ पे भी 5,500, टॉप 10 वहाँ पे। यहाँ पे सारी गवर्नमेंट कॉलेज आ गई, गवर्नमेंट, जीमेर्स मतलब सेमी गवर्नमेंट फीस वाली, सेल्फ फाइनेंस पूरी की पूरी फीस वाली। उसमें गवर्नमेंट कोटा की सीट्स रहती है, मैनेजमेंट कोटा, NRI की सीट रहती है, और इन सब की फ़ीस आप देख सकते हो। गवर्नमेंट में 25,000 एक साल का, गवर्नमेंट की फ़ीस भी लाख से ऊपर जा रही है, 4.5 लाख फ़ीस भरनी है, 4.5 साल, और बाद में 1 ईयर इंटर्नशिप और 1 ईयर गवर्नमेंट कंपलसरी सर्विस। 6.5 साल का तो सिर्फ MBBS है, उसमें 4.5 साल जो फीस भर रहे हैं आप 1 लाख से ऊपर जा रहा है। गवर्नमेंट का सबसे सस्ता वाला कॉलेज बोल रहे हैं। जीमेर्स में 3 लाख, 4.5 लाख 4.5 साल तक भरना है। मैनेजमेंट कोटा में 8.25 लाख 4.5 साल तक भरना है। फिर से कह रहा हूँ, सेल्फ फाइनेंस में 5-6 लाख से 8 लाख तक, और मैनेजमेंट कोटा में क्या बात कर रहे हो, 13 से 17 लाख, मतलब 15 लाख का फीस। 15 लाख की तो इनकम भी सालाना नहीं होती, ये सालाना फीस है, टोटल नहीं है। हमारे इंजीनियरिंग जैसी बात नहीं है, इंजीनियरिंग में 7 लाख में पूरा का पूरा इंजीनियरिंग ख़त्म हो जाता है, और स्कॉलरशिप निकाल के 5 लाख में इंजीनियरिंग ख़त्म पूरी। ये इसमें 6 महीने की फ़ीस भी नहीं होगी इसमें, सोच लो। अगर आप तो बोलेंगे मैं तो रैंकर हूँ, मेरा तो मेरिट 99 पीआर है। 99 पीआर मतलब तेरा नंबर 8,000 से ऊपर का नंबर है मेरे भाई, और 5,000 सीट है, तो 99 पीआर वाला बच्चा भी MBBS में नहीं पहुँचना है। देख लो 99 पीआर, 7,000 के आसपास नंबर 10th का, उतनी तो सीट्स भी नहीं है। देखो यहाँ पे 5,000 सीट है, आपका 8-9 हज़ारवा नंबर है, फिर भी आप अपने आप को रैंकर कह रहे हो 99 पीआर। आपको ये वाली सीट भी नहीं मिलनी है, ये सीट भी गई आपके हाथ से। देखते हैं, चलो। पूरा का पूरा नीट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है आपका बी ग्रुप का एडमिशन। तो 720 मार्क्स की जो नीट रहती है, उसमें से गवर्नमेंट कॉलेज जो 1 लाख के आसपास वाली कॉलेज है, 5 साल में 1 लाख ही भरना है, 4.5 साल में, उसमें 99.40 पीआर आपको स्कोर करना पड़ेगा। नीट में गुजरात में 523 के आसपास मार्क लेने पड़ेंगे। इफ़ यू स्कोर लेस देन दैट, मीन्स 464 अराउंड, then GMER means semi government college, in that 13 lakh total fees of 4.5 years of fee paying, and after that 2 years plus 1 internship and 1 year of compulsory service। अगर आपका स्कोर 400 के आसपास है, मतलब आपका पीआर देखिए 700 में से 400 को सोचेगा मैं तो स्कोर कर लूँगा। मेरे भाई ये 10th नहीं है, ये आपका गुजराती नहीं है, ये आपका हिंदी नहीं है क्या आप पढ़ लिया और स्कोर कर लेंगे। ये नीट है मेरे भाई, नीट जी, ये सब एग्ज़ाम्स क्रैक करना इतना स्कोर करना बहुत बड़ी बात होती है। 400 बोलेंगे तो आप कहेंगे 700 में से 400 तो आ जाएंगे। अगर मैं ये बोलूँ 91 के ऊपर पीआर लाना है, हाँ अब थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है। 91, 92 पीआर अगर आपका बायोलॉजी ग्रुप में आ जाता है तो आपको या तो जीमेर्स में मैनेजमेंट कोटा मिलेगा या सेल्फ फाइनेंस में गवर्नमेंट कोटा, जिसकी फ़ीस 37 lakhs and here 17 to 35, so almost 30-35 lakhs if your पीआर घट रहे हैं, पेरेंट्स पे बोझ आप बढ़ रहा है। पीआर 99.5 ला रहे हैं तो 1 लाख ही फीस भरनी है। 95 के आसपास पीआर है 13 लाख, 91, 92 के आसपास पीआर है 20-30 लाख फीस पापा को लगेगी। ये सिर्फ एजुकेशन फ़ी है, हॉस्टल का खर्च और वो सब अलग है, समझ लेना। अगर 81 पीआर है आपका तो भी आप MBBS बन सकते हैं, अगर आपके पिताजी के पास 17 लाख कॉलेज को देने के लिए है।
ये फ़ीस है, फ़ीस, डोनेशन नहीं है। डोनेशन जैसी कोई सीट्स ही नहीं रहती हमारे यहाँ। 3 ही टाइप की सीट रहती है, गवर्नमेंट, मैनेजमेंट एंड NRI। 60 से 70 लाख सारी कॉलेजेस का है, 70 लाख। ये सुनकर तो मैं भी अपने आप को गरीब महसूस करने लगा कि अगर मेरी खुद की बच्ची जो है, डॉटर है, इसके लिए अगर इतनी फ़ीस भरनी पड़े तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं प्राइवेट सेक्टर का आदमी, सेविंग, रिटायरमेंट लाइफ मेरी, और अगर इतना सिर्फ MBBS का देना है मुझे, MD का अलग से, तो भैया मैं सोचूंगा। इतने PR लाने वाला लड़का, इतना लड़का या लड़की इतने वीक नहीं रहते, लेकिन ये कॉस्ट तो भैया बहुत ही ज़्यादा है। तो MBBS नहीं मिल रहा तो मतलब स्टूडेंट जितना एफर्ट लगाएगा 99 तो पेरेंट्स पे कम बोझ आएगा, 90 तो पेरेंट्स पे 30 लाख के आसपास बोझ आएगा, और 80-85 के आसपास बना है, 400 से 300 के बीच, 91 to 81 ये लास्ट एडमिशन है। मतलब 85 वाला कोई बंदा अगर MBBS करना चाहता है तो वो यहीं आएगा। यहाँ से यहाँ तक के बंदे सब 70 लाख वाले बंदे हैं भैया। बाकी ये 30-35 लाख वाला तो 90 प्लस ही जाता है। 90 plus your student, then good, then opt for this. If your parents is capable to give this fees, then go for it. Otherwise B group is very much costly. Not only that, duration in MBBS 4.5 years of study, 1 year compulsory internship plus 1 year this compulsory service in government hospital. Otherwise you have to pay 20 lakh rupees to government extra if you don't want to waste your 1 year. In that case अगर आप वो 1 साल बिगाड़ना नहीं चाह रहे तो आपको 20 लाख गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। ये बॉन्ड कहलाते हैं, बॉन्ड पेनल्टी है ये। इतनी पेनल्टी गवर्नमेंट को आपको देनी है अगर आप ये वाला 1 साल नहीं बिगाड़ना चाहते हैं। तो आपकी एज ऑलरेडी 23 हो चुकी है। MBBS के बाद में आप सोच रहे हैं नहीं MD या MS करते हैं तो ही लाखों करोड़ों में कमाना है हमें, तो भैया और 3 साल पढ़ लो और से पिता को बोलो 30 लाख, 50 लाख, 70 लाख, जितना मेरिट आपका बन रहा है उस हिसाब से तैयारी रखे फीस का। और वो सब तो अलग, वो क्या हॉस्टल का खर्च, वो सब कुछ तो अलग। और ये सब करने के बाद 26-27 के आसपास अब MD हो गए। MD के बाद में मुझे DM करना है, 3 साल और पढ़ाई करनी पड़ेगी। 30 के आसपास तो बंदा पढ़ता रहता है। अभी कमाएगा नहीं तो कब मैरिज होगी और कब लाइफ में आगे बढ़ेगा, कब एजुकेशन लोन चुकाएगा अगर लिया हुआ है तो, कब पापा को हेल्प करेगा। सोचने वाली बात है। अगर आप गरीब है, 99 के ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जाओ भैया, ये 1 लाख का तो कहीं से भी जुगाड़ आप कर लोगे। गवर्नमेंट कॉलेज की MBBS सीट्स का 500 सीट है, 500 सीट के लिए 70,000 बच्चे लड़ते हैं। 70,000+ स्टूडेंट्स फाइट फॉर दिस 577 सीट्स, ओनली लेस देन 600 सीट्स। रेशियो सोच लो, 70 से 80,000 बच्चे B ग्रुप वाले ये 600 सीट के लिए मरते हैं। नहीं हो पाता तो इतनी फीस 1-1 साल की पिता को रेडी रखनी पड़ती है। सोच लेना भैया, ठीक है, ओके। एंड बच्चे सोचेंगे कि MBBS नहीं है तो क्या दूसरा कुछ कर लेंगे, ठीक है, तो देख लो इंजीनियरिंग बढ़िया या BSc बढ़िया, सबकी अपनी अपनी चॉइस रहती है। लेकिन इंजीनियरिंग वाला बंदा पढ़ा भी लेगा, BSc वालों का ही काम कर लेगा, वो फील्ड में भी जाके वर्क कर लेगा। तो इंजीनियरिंग दोनों ही काम कर लेगा। वो BSc वाला भी काम कर सकता है, टीचिंग वाला, रिसर्च वाला, जो BSc वाला कर सकते हैं वो सब इंजीनियरिंग वाला कर सकता है। लेकिन अगर फील्ड वर्क है कुछ, BSc वाला वहाँ पे जाके क्या करेगा? मैकेनिकल का अगर जॉब है तो BSc वाला तो वहाँ जा ही नहीं सकता। तो engineering is better. In A group, in 44,000 students, 33,000 got admission in 2019 in engineering, 1,000 in architect, 500 in pharmacy and agriculture, 6,000 in BSc. And in B group, look, 5,000+ MBBS seats were vacant this year. Yes,
फीस नहीं थी कई पेरेंट्स के पास। पूछ रहे थे बच्चे कि पहले बताना चाहिए ना कि इतना महंगा है बी ग्रुप। ठीक है, देख लो अपना। तो MBBS जो है 5,000 सीट्स, BA MS BDS 1,000 1,500। फिजियोथेरापी वाला, फिजियोथेरापी मतलब कसरत कराने वाला बंदा, वो एक्सरे निकालना है, एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर रिपेयर हो गया, फिर जो फिजियोथेरापी एक्सरसाइज कराते हैं ना वो बंदे। नर्सिंग, अब देख लो ये सारी क्या आपकी ड्रीम जॉब्स है? नर्सिंग वाली, BPT वाली या BSc आपकी ड्रीम जॉब है? क्या है इसमें से ड्रीम जॉब? ये बी ग्रुप के 53,000 स्टूडेंट्स पास आउट जो हुए थे, एडमिशन लिया था 2019 में गुजरात में, उसमें से 5,000 अच्छे वाले। अच्छे में भी फीस का फैक्टर तो सोचना ही है। ठीक है, और ए ग्रुप में 44,000 स्टूडेंट्स got admission in different various colleges and branches. Out of them 33,000 got admission in engineering. 21 की एज में फ्री, और यहाँ पे MD DM तक पढ़ना है तो 31 तक पढ़ो भैया, फीस भरते रहो, पढ़ते रहो। MBBS में सोचेगा कितना कमाऊंगा, देखते हैं। अभी इनकम में भी जो बी ग्रुप में अभी हो गया है ना, वो हमारा आयुष्मान भारत देख लेना। उसके आने के बाद बाईपास जो 2 लाख में हो रहा था वो अभी 70,000 में हो रहा है। अपेंडिक्स जो 40,000 में हो रहा था वो अभी 8,000 में हो रहा है। कमाएंगे कहाँ पे, वो भी सोचना है। ठीक है, ओके। तो करियर के तो काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं, अब पढ़ाई शुरू करनी है मेन तो हमें, तो हम पढ़ाई की ओर जाएंगे। राज सर ने तो आधा चैप्टर से ज़्यादा ख़त्म कर लिया है, मैं शुरू करूँगा नेक्स्ट लेक्चर से, पढ़ाई हम शुरू करेंगे। ठीक है, ओके।